بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم، ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کرم، سب پہ یہ داتا کا نگر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل، میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا، غفار ہے غفار ہے ستار ہے سلطان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے شفیق احمد صاحب، اور بڑی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے صبر سے متعلق، اور جب میں بریک پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں کی، خلفائے راشدین کی، اماموں کی، اولیاء کرام کی مثالیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میرے جیسا ایک عام آدمی، گناہ گار آدمی، اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اس میں کیا کیا جائے، کیا اس کو کیسے ہم مینیج کریں گے؟ ضامن صاحب دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، اولیاء، اصحاب کرام، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ارے حضور ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے کوئی وہ تھوڑی بن جائیں گے، تو کس نے کہا ہے وہ بن جائیں گے؟ یا بھائی وہ امام کا مرتبہ آپ کو کہاں سے مل جائے گا، وہ اصحاب کا مرتبہ آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو کردار پیش کیا، اللہ کا صفتی اسم ایک ہے یا اللہ، بقیہ جو اللہ کے صفتی اسما ہیں، کسی نے آج تک دیکھا کہ اللہ راضی کیسے ہے؟ اللہ رازق ہے نا، کسی نے دیکھا دیکھتے ہوئے کسی کو اللہ، کسی نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ اللہ محسن ہے، احسان کرتا ہے، کسی نے دیکھا آج تک احسان کرتے ہوئے؟ اللہ عزیز ہے، وہ دوست رکھتا ہے، کسی نے دیکھا آج تک کہ اپنی آنکھوں سے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ جو اصحاب کرام ہیں، اللہ نے کہا ہے جو میرے صفتی اسما ہیں، ایسی شخصیتیں بھیج رہا ہوں میں، تم میں ہی سے ہوں گے، جو کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی نا حدیث قدسی کی کہ ابدیت میں سب کو دعوت دی گئی ہے، اپنے اپنی عبادت کی اطاعت کی انتہا ہے۔ جو اطاعت الہی کو سمجھ گیا، کہا کہ احسان نام میرا ہے،
احسان یہ کریں گے تم دیکھنا کہ یہ کیسے احسان کرتے ہیں تو ان کا رب کیسے احسان کرے گا. ٹھیک. یہ رازق ہیں جب یہ کیسے دیکھتے ہیں تو دیکھو ان کا رازق کیسے رضا کر رہا ہے. غرض یہ کہ عمل ان کا ہوگا. تمہارا کام فقط اتنا ہے کہ جو قدموں کو نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں تم انہی قدموں پر نشان بنانے کی کوشش تو کرو. ٹھیک. چلنے کی تو کوشش کرو. تم جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنی تو کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ صبر کی انتہا ہو گئی. صبر کی انتہا نہیں ہوتی, انسان کی انتہا ہو جاتی ہے. انسان اپنی حدوں کو ممکن کر لیتا ہے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. صبر کی انتہا کو تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ صبر کی انتہا کا ہے کہ وہ انتہا جہاں خدا خوش ہو جائے. وقفے میں ایک بات ہو رہی تھی, میں کہتا چلوں, ایک آزمائش اولاد کی آزمائش ہوتی ہے. بعض گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایب نارمل بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ان ماں باپ سے پوچھیے کہ وہ ماں باپ اب یہاں دیکھیے کیا خدا عادل نہیں ہے, کیا خدا نے اس خاندان سے ظلم کیا ہے؟ نہ, ایسی بات نہیں ہے. وہ پروردگار عالم کی نگاہوں میں وہ ماں باپ محبوب والدین قرار پائے. خدا کہتا ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں صحت مند اولاد دے کر تو سب کو دیکھا, ایک ایسا بچہ دے کر دیکھتا ہوں. اور وہ بچہ جس گھر میں ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ بڑی بلا, بڑی مصیبت, بڑی پریشانی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن صاحب خانہ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی کرامتیں, کتنی نعمتیں فقط اس بچے کی وجہ سے میرے گھر میں ہیں, کتنی بلاؤں سے میرا گھر کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. یاد رکھیے یہاں مطلب کہنے کا نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں دعا وہ شکر کریں والدین کہ جن کو اللہ نے اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. وہ 6 چیزیں جو حدیث قدسی میں کہے گی کہ ستۃ من یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم, 6 چیزیں اے بندے میری طرف سے تیرے لیے ہیں اور 6 چیزیں تیری طرف سے میرے لیے ہونی چاہیے. جس میں سے من جملہ کہا کہ الرزق منی و شکر منکم, المغفرۃ منی و توبۃ منکم, والاطاعۃ والجنۃ منی والاطاعۃ منکم. من جملہ اس میں کہا البلاء منی والصبر منکم, امتحان آزمائش میری طرف سے ہوگی, صبر تمہاری طرف. صبر منکم, مگر صبر تیری طرف سے چاہتا ہوں میں. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ, اگر تجھے یقین ہو جائے کہ تو اس قابل ہے, اگر میں یہ سوچوں کیا میں اس لائق بن گیا کہ اللہ مجھے کسی امتحان میں آزما رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ امتحان میں کسی ذہین اور پسندیدہ شاگرد ہی کو آزمایا جاتا ہے. اگر میں اس امتحان میں بھی پورا اتر جاؤں تو یہ بھی شکر کی منزل ہے کہ اللہ تو نے اس قابل سمجھا کہ کچھ آزمائش ہو تو مجھے صبر کا امتحان دے رہا ہے اور منزل شکر پر پہنچانا چاہ رہا ہے تم مجھے. میں پوچھنا چاہوں گی, بہت خوبصورت, بہت ہی جامع گفتگو کی آپ نے. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر کو بدلے پر فوقیت کیوں دی گئی ہے؟ پہلی بات جو میرے بھائی ضامن صاحب فرما رہے تھے نا, ایسا ہی ہے کہ ہمارا خدا ڈاکٹر صاحب ظالم نہیں ہے, صفاق نہیں ہے کہ صبر بھیجا اور پھر ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہے صبر کرنے کی, اور ہمیں محض مجبور بھی نہیں بنایا بلکہ طاقت دی ہے, صبر بھی کر سکتے ہیں. بزرگان دین, ائمہ, اولیاء, کاملین, صالحین, انبیاء کرام نے صبر کر کے دکھایا ہے. حکم یہی ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. اگر تمہارے اسلاف, آباء و اجداد ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں, صبر کر سکتے ہیں, تو تم بھی کوشش کرو. ہاں درجے میں فرق ہے, ان کے جو درجات تھے وہ بلند و بالا ہے. ہم جتنا صبر کریں گے اتنا ثواب پائیں گے. ٹھیک. تو اسی طرح جب صبر کا حکم نفس پر آئے گا تو عاجزی پیدا ہوگی, یہ تکبر, غرور ٹوٹے گا, حسد, کینہ, بغض, یہ ساری بیماریاں ختم ہوں گی. اور ہو سکتی ہیں یہ ساری بیماریاں ختم اگر کوئی صبر کرنے والا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں فرمائی جو انسان کے مخلوق کے فائدے میں نہ ہو یا بے مقصد ہو. تو صبر کے معنی بھی ہے, صبر ایک با مقصد چیز بھی ہے, صبر نعمت بھی ہے, صبر ایک شکر کی جناب ایک شاخ ہے. یعنی بغیر صبر کے شکر انسان کر ہی نہیں سکتا. شکر پہ تو ایک نعمت ملتی ہے اور صبر پہ لاکھوں لاکھ نعمتیں, اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دیدار الہی ہے. بالکل صحیح ہے. اس پہ ذرا علامہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا میں. اب ہم صبر پہ تو گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ایک اور لفظ ہے حمیت. حمیت میرے سامنے جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے, یا کوئی معصیت ہے, یا کوئی برائی ہے. اب میری حمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہیں, میں اس کو جو ہے ہونے نہ دوں. اور صبر جس طرح آپ فرما رہے ہیں, صبر یہ ہے کہ میں خاموش رہوں, برداشت کروں. اب یہاں صبر اور حمیت میں سے کس کو اختیار کیا جائے گا؟
देखिए मेरा जो वजीफ़ा शरई बनेगा, दो चीज़ें होंगी इसमें। जी। एक है मेरा वजीफ़ा शरई। जी वजीफ़ा शरई मेरा क्या है कि जो मेरी इस्तिताअत है, जी मैं ज़बान से, जी हाथ से, जिस तरह से भी मैं वो चीज़ जो बुनियादी दीन के ख़िलाफ़ हो रही हो मेरे सामने, जितनी मेरी इस्तिताअत है उतनी इस्तिताअत लफ्ज़ों से भी इस्तेमाल करनी है मैंने, ठीक है। हाथ से भी इस्तेमाल करनी है। इन दोनों चीज़ों से मैं अगर नाकाम हो जाता हूँ, हमारे यहाँ मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि जिस्मानी अमराज के लिए तो मेडिसिन हमें मालूम है बिल्कुल ठीक। कि जिस्मानी मर्ज हो गया, इसकी मेडिसिन क्या लेनी है, क्या लेनी है। सही। ये जो रूहानी मसाइल है ना हमारे, सब्र नहीं होता, बनात कैसे की जाए, क्या किया जाए, बर्दाश्त ही नहीं होता मुझे। भाई रूहानी मेडिसिन इस्तेमाल करो ना, कभी उसको भी तो पढ़ लिया करो ना। तो अल्लाह के पास मेडिसिन है ना सारी की सारी, ये अस्माए इलाही की मेडिसिन है ये सारी की सारी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मसलन नहीं हो रहा बर्दाश्त, मैंने ज़बान भी इस्तेमाल कर ली, हाथ भी इस्तेमाल कर लिया, जो कुछ मैं कर सकता था इख्तियार में था सब कुछ कर लिया, ठीक है, नहीं हो रहा मुझसे, मैं क्या करूं, जज्बात कैसे कंट्रोल करूं? तो कहा गया कि एक रूहानी दवा है ना, कैप्सूल ले लो। कौन सा कैप्सूल ले लो? कहा कि बैठ के 100 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। अल्लाह की पनाह मांगो। बस। ठीक, अल्लाह की आप पनाह देखिए कैसे रिलैक्स हो जाएंगे आप। जी बिल्कुल सही तो है। नेकी काम आ रहा है, तो ये हमें कम से कम इतना वक्त थोड़ा सा निकाल लें, इलाही मेडिसिन कौन कौन सी हैं, कौन सा कैप्सूल, कौन सी टैबलेट, कौन सा सिरप किस वक्त काम आ रहा है। देखिए बस अब ज़ाहिर वक्त ही मैं मिसाल करूँ कि दवा की दुकान में जाते हैं, खांसी मुझे हो रही है, लाइन से कफ सिरप रखे हुए हैं, मगर हर कफ सिरप हर कफ में तो नहीं पिला सकते ना आप उसको। बिल्कुल सही है। ये देखा जाएगा कौन सी दवा किसकी है, तो यही अस्माए इलाही है। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ मासियत तो हो, मगर यह है कि इस बात का अंदेशा हो कि अगर मैं बीच में बोलूंगा तो फितना बढ़ जाएगा, फितना बरपा होगा, तो फिर मुझे सब्र कर लेना, फिर उसमें नहीं मुझे बोलना सब्र चाहिए। करना है, जहां तक मैं मैसेज दे सकता हूँ वहां तक तो देना है, अपनी उज्जत तमाम करनी है मैंने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक नेक काम के लिए इसके बदले 10 और फितना पैदा हो जाएंगे। तो मैं कम से कम अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी नहीं करने के बाद मैं खुदा की बारगाह में क्या, अल्लाह अब मैं ये खामोश हो रहा हूँ, तेरी रज़ा के लिए हो रहा हूँ, तू बेहतर जानता है। मेरी जितनी ताकत मैंने इस्तेमाल की है, मैं अपने वजीफे से काबिल नहीं हुआ हूँ, और अल्लाह अब तू मुझे ताकत दे कि मैं इस पर सब्र कर सकूँ इस बात के ऊपर, बस वो खुदा ताकत अता करता है फिर। जी मेरे ख्याल में मेरे पास अब बहुत कम है, 1 मिनट आपके पास, अगर आप कोई कंक्लूड करना चाहें, इसको समराइज करना, 1 ही मिनट है। मैं यही अर्ज करूँगा कि जामिन भाई ने इलाज तो बता दिया है, सिरप, मेडिसन, सारी चीज़ें सब्र के बारे में अगर कोई करे, लेकिन मैं हदीस रसूल पेश कर देता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ऐसे काम हो रहे हैं वहाँ सब्र भी करो, तुम हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, ठीक, जबान से रोक सकते हो जबान से रोको। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर ईमान का जो अदना दर्जा है, सब्र तो बहुत बड़ा ईमान है, ईमान का जो अदना दर्जा है वो ये है कि दिल के अंदर उस चीज़ को बुरा जानो जो खिलाफ शरीयत काम हो रहा हो, कि ये काम बुरा है, ये ईमान का अदना दर्जा है। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तो हमारे साथ अभी ट्रांसमिशन में कैरी करेंगे जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज हमने बात की सब्र से मुताल्लिक, और उलमा इकराम ने मुख्तलिफ जो चीज़ें वाक़यात बताए, सहाबा इकराम के वाक़यात, आइम्मा के वाक़यात, खुलफ़ाए राशिदीन के वाक़यात, पैगम्बरों के वाक़यात, उससे हमें समझने में ज़रूर मदद मिली है। ताहम हम गुनाहगार लोग हैं, हमारे बशरी तकाज़े हैं, हम ख़ताकार लोग हैं, हम सब्र को एक हद तक ले जाते हैं, लेकिन जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया सब्र की वाकई कोई इंतहा नहीं है, ये बंदे की इंतहा हो जाती है। अल्लाह ताला से हर वक्त आजमाइश से बचने की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको आजमाइश में ना डाले। ताहम अगर कभी कोई आजमाइश आती है तो जैसे कि कुरान मजीद की सूरह बकरा ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सब्र करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी बशारत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपने इस प्रोग्राम को यहीं पर मैं कंक्लूड करता हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ये बहुत ही हमारा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है जिसमें हम तिब्ब नबी के रोशनी में जो नुस्खे बताए जाते हैं उनसे बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं और बहुत फ़ायदे हासिल करते हैं। उस हवाले से हमारे साथ पहले दिन से हैं बहुत ही काबिल एहतराम आगा अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब, आप तो वाकई एक तोहफ़ा है हमारे लिए। और हमारी बहुत ही खूबसूरत न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा, जिनकी कमी मुझे कल शिद्दत से महसूस हुई क्योंकि ये कल नहीं आई थी और मैं इनसे नाराज़ भी हुई। रीमा, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है और मैं कल किसी वजह से नहीं आ सकी थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, लेकिन फिर से आज आपकी मोहब्बत रोक नहीं पाई। माइक का प्रॉब्लम है, माइक बिल्कुल ठीक करते हैं। और मैं आप सब लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग हमेशा बहुत गिले करते हैं और एतराज़ात करते हैं कि हमारे सरकारी हस्पताल जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वहाँ पर सही तरह से इलाज किया जाए या वहाँ पर जाकर मरीज़ को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं होती जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं। मगर अच्छे लोग भी हैं और लगता है कि जो क़यामत अभी तक नहीं आई उसकी वजह यही है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं और अच्छी सोच को लेकर चल रहे हैं और अच्छे काम को भी। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में हैं जिनका नाम है अब्दुल वहाब डोगर साहब। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपके बारे में मैं बताती चलूँ कि अब्दुल वहाब डोगर साहब की सरबराही में अभी तक 50 जिगर के हवाले से ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें से 30 जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और ये किसी भी सॉरी ठीक कर दें प्लीज़, ये 30 कामयाब नहीं, 30 पिछले 3 महीनों में हुए हैं। पिछले 30 जो है वो 3 महीनों में हुए हैं। और कामयाबी की शरह क्या है? 87%। 87%। क्लैप होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जिगर की पेवंदकारी का 50वां कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया है। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 माह में माहिर जिगर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अब्दुल वहाब की सरबराही में 30 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं और ये किसी भी पाकिस्तान के सरकारी हस्पताल के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। थैंक यू। और मैं आपका माइक ठीक हो गया, आप ठीक कर लीजिए। और मैं बताती चलूँ कि गम्बट हस्पताल के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि इतने महदूद वसाइल में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना और इस तरह का हस्पताल न सिर्फ सिंध बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप इतने अहम और इतने मुश्किल काम को बहुत ही महदूद वसाइल की मौजूदगी में लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ापन है, आपकी अज़मत को सलाम है। थैंक यू सो मच। मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी, आपसे इजाज़त लेके भाई और फिर आपसे कि ये कैसे क्यों कर मुमकिन हुआ, इतने महदूद वसाइल और इतना मुश्किल काम। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, वसाइल तो महदूद हैं ही, नो डाउट, पूरे पाकिस्तान के वसाइल इस वक्त महदूद हैं। तो इसके लिए जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वसाइल। वसाइल तो लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स और जो मशीनरी है वो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मौजूद है। कराची के 3-4 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें ये मौजूद है, लाहौर के 3-4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें ये मौजूद है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल्ड मैन पावर। जो स्किल्ड मैन पावर है वो वहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं। हमने पूरे पाकिस्तान से लोग ढूंढे हैं और वहाँ पे प्लेस किए हैं, उनको बड़ी मेहनत से ढूंढा है। हमारे डायरेक्टर जो हॉस्पिटल के हैं इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने लोगों को हंट किया और उस वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम एक छोटे शहर में इतनी कामयाबी के साथ वो ऑपरेशन जो कराची में अभी तक बहुत कम या नहीं हो पाए या बहुत कम हुए, लेकिन उस छोटे शहर में हम बड़ी कामयाबी से और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली और रेगुलरली कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे पूछती रहूँगी, मज़ीद मालूमात हासिल करती रहूँगी। जी आका अब्बास भाई, आपको पता है कि जिगर, जी हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि दिल से भी अहम जो एक उज़ू है हमारे जिस्म के अंदर वो जिगर है। बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक, जिसके बगैर रहना नामुमकिन है। ट्रांसप्लांट जी हाँ, भी होते हैं जिगर, मगर मैं कहती हूँ कि ये कितना बड़ा एक काम सर अंजाम देता है कि हर चीज़ को फिल्टर करके हमारे पूरे जिस्म में सफाई का काम
और सफाई निस्फ ईमान जी हाँ, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल, मुझे लगता है पूरी बॉडी के अंदर सारा काम ही जिगर कर रहा है। जिगर का काम है, इसीलिए तो बच्चों को अक्सर माँ कह रही थी मेरे जिगर का टुकड़ा हो। हाँ, और दिल कह रहा होता है शाबाश 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 शाबाश, दिल सबको थपकी दे रहा है और शाबाश शाबाश करके सबकी हौसला अफजाई कर रहा है। तो इसी वाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तिब्ब नबी के नुस्खों की रोशनी में आप मुझे बताइएगा कि जिगर की बीमारियां किन वजूहात की बिना पर होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये मेरे तिब्ब अंबिया की बातें हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की बातें हैं। और ये जो इल्म है तिब्ब अंबिया और तिब्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही परवरदिगार है, परवरदिगार की वही की वजह से ये इल्म वजूद में आया। इसकी बुनियाद तजर्बा नहीं है, इसकी बुनियाद वही है, परवरदिगार की बुनियाद पे ये वजूद में आया। जो जिगर की बीमारियों की वजह जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, मौला ने अपने शागिर्द मुफज्जिल को मुखातिब करके फ़रमाया कि ए मुफज्जिल ज़रा गौर करो, परवरदिगार ने इतनी लतीफ़ शय जो बनाई जिगर, उसको मैदे से भी ज़्यादा सख्त काम उससे लिया, लेकिन लतीफ़ शय है, मैदे से भी ज़्यादा काम करता है। यह मैदे से ज़्यादा काम कैसे करता है? मैदे में हम ग़िज़ा डालते हैं, ग़िज़ा उसको हज़म करता है, मैदा ग़िज़ा को पकाता है, उसके बाद उस ग़िज़ा का जो लब्बे लुबाब है वो जिगर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, वो बारीक रगों के ज़रिए से जिगर की तरफ वो मुंतकिल हो जाता है। फिर जिगर उसका उस लब्बे लबाब जो खासा आता है ग़िज़ा का, उससे खून बनाता है और वो उस खून को तमाम जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है, फैलाता है। जिगर का काम यह है। अच्छा, जिगर चूँकि हरारत अगर इस जिगर में पैदा हो जाए या ज़ख़म अगर जिगर में पैदा हो जाए या जिगर में वरम आ जाए तो इसका हर मुमकिन इलाज मौजूद है तिब्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1,24,000 पैगम्बरों में एक नबी गुज़रे हैं, हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम। जब हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को जिगर में तकलीफ़ हुई वो तो ज़ारो क़तार रोने लग गए, गिरिया वज़ारी की परवरदिगार के सामने, सरबा सुजूद हो गए और परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ, इसका कोई इलाज मुझे बता। तो परवरदिगार ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए से वही भेजी कि ए हिज़्क़ील, तुम्हें चाहिए कि इंजीर के दरख्त की टहनी को तोड़ो और उसमें से जो दूध निकलेगा वो अपने जिगर के ऊपर लगाओ बाहर की जानिब और अपने सीने पे भी उसको लगाओ। तो उन्होंने कई मुतवातिर 3 या 4 दिन ऐसा किया तो उनके जिगर को आराम आ गया, उनके जिगर को तक़वियत मिल गई और उनके जिगर का मर्ज़ दूर हुआ। इसी तरीके से ये जो तिब्ब अंबिया की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से वजूद में आई। जब अंबिया बीमार पड़ते थे तो वो किससे दुआ मांगे, किससे अपना इलाज कराएं? ना उस वक्त लेबॉर्ट्री थी, ना उस वक्त कोई रिसर्च सेंटर था, ना उस वक्त कोई हॉस्पिटल थे। तो वो परवरदिगार के आगे दुआ करते थे, गिरिया उजारी करते। तो परवरदिगार उनको वही के ज़रिए से, जिब्राइल अमीन के ज़रिए से नुस्खा भेजा करते थे तो उससे इलाज होता था। आज वही ट्रांसफ़र होकर किताबों की शक्ल में, मदरसों की शक्ल में वो हम तक पहुँचा है। आज हम उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और जो जिगर के मरीज़ हैं, अगर उनके जिगर में वरम है वो ये करके देखें, अगर जिगर में ज़ख़म है तो भी ये करके देंगे। मैंने तो बहुत सारे लोगों को बताया और जिनको फ़ायदा हुआ। एक दफ़ा कनाडा से एक मरीज़ा आई मेरे पास, उनके जिगर में 3 ज़ख़म थे, उनको मैंने बाहर की जानिब से ये लगवाना शुरू किया। आप यकीन करें 2 ज़ख़म बिल्कुल 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो गए माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिगर की बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए जो जिगर की कॉमन बीमारियां हैं, जो ऐसी बीमारियां जो जिगर को फेल करती हैं, वो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी, सी या फिर अल्कोहल, ये 3 चीज़ें हैं जो जिगर के लिए जिगर को फेलियर की तरफ ले जाती हैं। फेलियर का मतलब यह है कि एंड स्टेज आपका लिवर पहुंच जाता है। वो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल। अल्कोहल का तो आपको पता है कि एज ए मुस्लिम इस्लाम में ये है ही हराम, तो इससे तो बचना ही चाहिए एज ए मुस्लिम भी, और एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि अल्कोहल आपके जिगर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बाकी बच गया हेपेटाइटिस बी या सी। हेपेटाइटिस बी और सी ये खून से ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं। ये दोनों, ये आपकी, इनको हम ब्लड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, यानी कि इनकी मुंतकली एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ब्लड के ज़रिए होती है। बहुत आम कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ये पानी से या खाना पीना खाने की चीज़ों से होता है, ऐसा नहीं है। ये प्योरली ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं। इनको 100% रोका जा सकता है। कैसे? जिस तरह
पहले ये होता था कि सिरेंजेस का जो यूज़ होता था, एक ही सिरेंज एक पेशेंट को लगा के फिर उसको बार बार पानी से वॉश करके दूसरे मरीजों में यूज़ करते थे। एक तो ये चीज़ ये काफ़ी हद तक अब पाकिस्तान में कम हो गई है। हमने देखा अपनी जनरल प्रैक्टिस में जो आम फिजिशियंस हैं वो भी नई सिरेंज यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो कि अच्छी बात है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जब हम मेल जो है ये शेव कराने के लिए जाते हैं तो वो ब्लेड भी सेम ब्लेड यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इसके फैलने का। और तीसरे नंबर पे जो डेंटिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पे जो वो डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जो आपको आम डेंटिस्ट मिलते हैं, दंदान साज जिसको आप कहते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज़ करते हैं, इनसे भी बहुत कॉमनली हेपेटाइटिस बी और सी स्प्रेड जी स्टेरिलाइज नहीं करते। और चौथे नंबर पे ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं जो ये अपने नाक या कान छींटते हैं, वो सेम उसके लिए औजार यूज़ करते हैं, उससे भी ये मुमकिन हो सकता है। और कुछ लोग टैटू बनवाते हैं चेहरे पे अपने बाजुओं पे, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। जी, आपने कहा कि आपने कॉमन सवाल किया, तो मैं बताती चलूँ कि कॉमन सवाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो कॉमन पब्लिक है वो उनको समझाने के लिए बार बताने के लिए वो भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कि एक आम सी चीज़ कितने नुकसानदेह साबित हो सकती है, अगर ज़रा सी बदएहतियाती आपको मौत की तरफ ले जा सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा मुश्किल सवाल तो होते हैं, मगर एक सादा से हमारे उलमाए कराम हों या तिब्बे नबी के हवाले से हमारे डॉक्टर्स हों, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हों, मैं इसलिए बड़े आसान अल्फाज में भी पूछती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं अल्फाज में बताया भी जाए ताकि हमारे लोगों को बार बार याद दहानी कराई जाए कि सीधी सादी चीज़ को सीधे सादे तरीके से करेंगे, एहतियात से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। हम पीएचडी किए हुए हों लेकिन नर्सरी के बच्चे को नर्सरी के लेवल पर ही आके पढ़ाना पड़ता है, तो वही हमने अपने आवाम को, व्यूअर्स को बताना होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या एहतियाती हमें तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए हमें जो हमारे जिगर के लिए फ़ायदा मंद हो, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बारान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले उफैरा ने सब्र का मुजाहरा करते हुए अपना जवाब रोक लिया था क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी सब्र है। अच्छा तो, जी तो मैं उफैरा अब आपसे पूछना चाहूँगी, सब्र का फल मीठा, आपको टाइम भी अब ज़्यादा मिलेगा। आप मुझे बताइएगा कि जिगर को बीमारियों से बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और ऐसी कौन सी ग़िज़ा हम खाएं जिसकी वजह से हमारा जिगर जो है वो सेहतमंद रहे। सही है। अच्छा रीमा, जिगर हमारे जिस्म का वो ऑर्गन है बेसिकली जिसके बगैर, जिसको अगर कुछ हो जाए या वो ख़राबी की तरफ चला जाए तो हम करीबुल मौत हो सकते हैं। सिर्फ दिल और दिमागी वो ऑर्गन्स नहीं, ये भी ऐसा ही है। इसका मेन फंक्शन ये है, अब्बास भाई ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, इसका मेन फंक्शन ये, एक तो ये खून बनाता है, उसके बाद जो भी हम ग़िज़ा ले रहे हैं वो ग़िज़ा जब हमारे जिगर जब प्रोसेस्ड हो के जब हमारे जिगर में जा रही होती है तो हमारा जिगर एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड बाइल। बाइल का काम ये होता है, बाइल जाकर इंटेस्टीन्स में वो उस तमाम ग़िज़ा से मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स निकाल के वो हमारे इंटेस्टीन्स में एब्जॉर्प्शन होती है, जिसके ज़रिए वो ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म तक पहुँचती है जो हम खा रहे होते हैं। और अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर हमारे इंटेस्टीन्स में एक लेयर बैठनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और फिर हमारी जो हमें चाहिए, जो हमें ताकत चाहिए, वो हमें ताकत भी नहीं मिल पाती, प्लस हमें अच्छा खून भी नहीं मिल पाता। तो ये तमाम चीज़ों से हम सफ़र करते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी भी पेशेंट का जिगर ख़राब हो जाए। जो एहतियात हमने बरतनी चाहिए, अल्कोहल तो डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, लेकिन हमारे इस्लाम में नहीं है तो बहुत कम लोग उसके एडिक्ट होते हैं, लेकिन स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। स्पेशली जो चेन स्मोकर्स हैं, जो वीट स्मोकर्स हैं, वो उससे जिगर, अगर आप मैंने पूरा एक इस पर रिसर्च भी पढ़ी थी, देखी भी थी कि एक बॉक्स में आप लेवर रखें और उसमें स्मोक, जो सिगरेट का स्मोक है वो डालते हैं तो इट बिकम ब्लैक, तो गुर्दा भी ब्लैक हो जाता है, वो सारे लंग्स हमारे ख़राब होते हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ मेन कॉज जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा हमारे रूटीन अगर अनहेल्दी हो जाता है, हम खा पी टाइम पे नहीं रहे हैं, सही तरीके से खा नहीं रहे हैं, प्लस हमारा जो आउटसाइड ईटिंग है, हम बाहर से बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, हम बहुत ऑर्डर कर रहे होते हैं, बट हमारे उन खानों में कौन सा तेल यूज़ हो रहा है। स्पेशली जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, जो ठेले वगैरह होते हैं, गरीब हैं वो, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, वो चाहते हुए भी शायद उस तरह से ख्याल ना कर पाएँ। हर कोई नहीं करता,
बट कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टमाटर है, अगर वो सड़ा हुआ हो गया तो उनका वो एक टमाटर फेंकने लिए उनके बजट में हैवी पड़ेगा, तो वो उसको किसी ना किसी तरीके से काट पीट के यूज़ करते हैं. डेट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस. इसी तरह से प्याज हो गई और बाकी चीज़ें भी हो गई, तो हम बाहर की जो कंटेमिनेटेड फूड और डाइट ले रहे होते हैं उससे भी हमारे जिगर पे बहुत बुरा असर पड़ता है. अब हमने लेना क्या चाहिए, तो हमारी जो डाइट प्लान्स हैं वो हेल्दी आइटम्स पे डिपेंड करने चाहिए. हमारी सब्जियां और फ्रूट्स अच्छे होने चाहिए. फ्रूट्स अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो आप सब्जियों की तरफ आए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें आपस में मेरी प्यारी बहन, अब तो लोग सब्जियां भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे. अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे. बहुत महंगाई हो रही है. अच्छे से अच्छे, या तो अमीर अमीर से अमीर तरीन हो रहा है, गरीब तो गरीब ही है, मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है. वो वाली चीज़ है. तो वो, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो हर तरह से हमारे लिए, हर बीमारी में स्पेशली जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं. अब डाइट प्लान पे जब आप जा रहे होते हैं, आपको पतला होना है, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं. तो इन चीज़ों की स्मूदीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं. पालक हो गया या सब्ज़ी हो गई है. उसके अलावा हम जब फल पर आते हैं तो हम सिट्रस, जो ग्रेप फ्रूट हो गया है, जो लेमन जूस हो गया है या ऑरेंज जूस हो गया, ये बेसिकली क्लेंस करते हैं हमारे जिगर को, हमारे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन को, हमारी ब्लड मेकिंग को. इन तमाम चीज़ों को बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत आसानी करते हैं कि अच्छे तरीके से वो चीज़ प्रोसेस हो सके. प्लस कम तेल, एक जो एनर्जी, उसका काम सिर्फ हमारे बॉडी को एनर्जी देना है. जो हम फैटनिंग डाइट ले रहे होते हैं, घी और रोगनी ग़िज़ा, तो हमने सिर्फ उसी हद तक लेना है कि हमें एनर्जी मिल जाए. वो हम फ्रीज्ड घी वाले खाने जिनको हम फ्रीज़र में रखें तो एक तह जम जाए, तो उसको हमने अवॉइड करना है. और हेल्दी डाइट लेनी है. सोना अच्छा है, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जी डॉक्टर साहब, आप एग्री करते हैं जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट फैरा ने बताया? मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा इनकी बातों से जो इन्होंने एक्सप्लेन की हैं. जी हाँ, बहुत पॉजिटिव इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि ये पूरा आपका शो पूरा पाकिस्तान देख रहा है. तो ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ये जो लिवर है खून बनाता है, जिगर खून बनाता है. मैडम ने 2-3 दफ़ा अपनी टॉक में ये बात की है. ऐसा नहीं है. मेडिकली अगर हम कहें, जब आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यस दैट्स ट्रू, उस दौरान में जिगर कह सकते हैं कि आप खून बना रहा होता है. लेकिन जब आप एडल्ट्स हैं जब, तो हमारे बोन मैरो खून बनाते हैं. जो आपकी बोन, जो हड्डियों का गूदा जिसको आप कहते हैं, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, आपके ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वहाँ से बन रहे होते हैं. जिगर का काम हरगिज़ खून बनाना नहीं है. ये असल में हमारे से हर मरीज़ आके यही कहता है मेरा जिगर खून बनाना बंद हो गया है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिगर खून नहीं बनाता. डॉक्टर साहब, आपको पता है कि सॉरी, मैं क़तः कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ झूठ सच से बेहतर होते हैं. क्योंकि अगर आम फहम लोगों को आप बहुत इतनी बारीकी में चले जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी. मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मसला हल हो जाए, क्योंकि मुझसे रोज़ पेशेंट आके यही बात पूछते हैं कि मेरा जिगर खून नहीं बना रहा. ये भी सदका जारिया है. आप इस तरह से अगर उनको हेल्दी डाइट की तरफ माइल करेंगे, आप उनको एक्सरसाइज की तरफ माइल करेंगे और कायल करेंगे, तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, अगर हम इतनी बारीकी में जाकर उनको कुछ भी बताएंगे तो एक पढ़ा लिखा आदमी तो समझ जाएगा. और आपको पता है कि तालीम के हवाले से हमारी जो रेशो है वो आप सबके सामने है, आपसे तो पोशीदा नहीं है. अगर आप ब्लड मेकिंग में जिगर के फंक्शन को हटा दें तो आपके जिस्म को प्रॉपर खून मिलेगा भी नहीं. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है. लेकिन हमें होता है कि सादा से अंदाज में हम लोगों के सामने एक अच्छी बात लेकर आएँ, एक अच्छे मैसेज को स्प्रेड करें, ताकि लोग अपने आप से प्यार करना शुरू करें. ये बात बिल्कुल आपकी सही है. लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहूँगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए और रिसर्च के बाद इन्फॉर्मेशन दी जाए लोगों को. मैं भी थोड़ा सा कुछ अर्ज कर देता हूँ. मैं भी कुछ सर्च कर दूँ इसमें. मैंने तिब्ब नबी में भी यही पढ़ा है, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कोड मैंने किया, वो कॉल जो है कोड किया. मौला ने फरमाया कि जिगर खून बनाता है. और मैंने अंग्रेज़ी तिब की किताबों में भी यही बात पढ़ी है. मैं डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर मुझे होगा तो मैं भेजूंगा ज़रूर इनको तमाम चीज़ें जिसमें अंग्रेज़ी तिब कह रही है कि खून बनाता है जिगर. मैं भेजूंगा, क्योंकि मुझे भी इख्तलाफ हो गया इस बात से इनकी. क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी, बाल सारे सफ़ेद हैं हमारे, ये कलर लगा हुआ है, सारी ज़िंदगी हमने यही पढ़ा. अच्छा, अंग्रेज़ी तिब की भी मैंने रिसर्च की है थोड़ी सी, और जो तिब्ब नबी हमने जहाँ से भी पढ़ा है के अलावा इस्लामी मुल्क से जहाँ से हमने दीन हासिल किया, ये
ہم نے وہیں زندگی بھر یہ پڑھا کہ جگر خون بناتا ہے. اچھا ہم نے رسول اللہ کا قول بھی اس کے بارے میں یہی پڑھا, ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی یہی پڑھا, اور ہم نے انگریزی طب کی کتابیں جب کھول کے دیکھی, اور اتفاق کی بات ہے آج صبح بھی جب 2 بجے مجھے معلوم چلا اس پہ ٹاپک میں نے کھول کے دیکھی, اس میں میرے پاس یہی لکھا ہے کہ جگر خون بناتا ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا. اچھا جگر کی تمام اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, بالکل جگر خون بناتا ہے. خون صاف رہنا چاہیے, خون کی صفائی کا اور اپنی روح کی صفائی کا, دونوں صفائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے اگر کسی بات پر آپ لوگ متفق نہیں ہیں تو پازیٹیولی اس پر بات کرنی چاہیے, تاکہ اس کے اندر بات کے اندر سے ایک اور بات نکلتی ہے اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے تو کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ سائنس جو ہے ابھی تحقیق اور تجربے کے راستے میں ہے. اب اس بات سے آپ بہت کچھ سمجھ لیں, آپ سائنس میں نے جتنی سائنس پڑھ لی اس میں یہی ہے کہ جگر خون بناتا ہے. اچھا سائنس کے نظریات, نئی تحقیق, نئے نظریات آتے ہیں تو سائنس اپنا اسٹیٹمنٹ چینج بھی کرتی ہے. سائنس پہلے کہتی تھی کہ سیب میں 20 بیماریوں کا علاج ہے, آج سائنس کہتی ہے کہ 40 بیماریوں کا علاج ہے. سائنس تحقیق کو چینج کرتی ہے. اچھا لیکن یہ جو وحی الہی ہے, یہ جو طب نبوی ہے, یہ کبھی چینج نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا, انہوں نے کسی سے تجربے سے نہیں پڑھا, انہوں نے صرف پروردگار کی جو وحی ہے, اللہ کی جو وحی کے ذریعے سے یہ علم اترا ہے وہ ہے, الہامی ہے. بالکل جی بالکل, اس سے تو بالکل کوئی انکار ہے ہی نہیں آپ کی بات سے. ڈاکٹر صاحب میں آؤں گی کہ اتنے محدود وسائل میں آپ ایک ایسے علاقے میں جو شہر میں بھی شمار نہیں ہوتا, ایک بہت دور دراز علاقہ ہے, اس میں آپ اتنے مشکل کام کو لے کر چل رہے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس میں ڈیفینیٹلی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہوگی, تو آپ کیسے افورڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپریشن کوئی بھی ہو اس پر لاگت آتی ہے اچھے خاصے پیسوں کی, تو آپ پلیز اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیے. جگر کی پیوند کاری جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے مہنگا آپریشن ہے. یہ اگر آپ جی بالکل, میرا مقصد یہی تھا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا, بہت سارے لوگ ہیں اپنا جگر لیور ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں. جب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں وہ آتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ تقریباً 80 to 90% لوگ وہ ہوتے تھے جو اپنا گھر بیچ کر آتے تھے, وہ پیسے اکٹھے کر کے. کوئی بھی آپ دیکھیں کہ ہارڈلی 0.5% ایسے لوگ ہوں گے, اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ کے جگر کی پیوند کاری ہونی ہے اور اس پہ 50-60 لاکھ روپے لگ رہے ہیں, کوئی پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ 0.5% لوگ ہی ایسے ہوں گے جن کو سوچنا نہ پڑے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. باقی سب لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے, کچھ زیادہ تر تو لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اتنے پیسے. جو کچھ مڈل کلاس ہوتے ہیں, جس طرح میڈم نے کہا کہ مڈل کلاس بھی ختم ہو رہی ہے, مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یا تو لون لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں, یا بہت سارے لوگ اپنا گھر بیچ کر ہمارے پاس آ کے یہ لیور ٹرانسپلانٹ کرواتے تھے. تو یہاں پہ گمبٹ میں یہ ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ ہمارے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر اس میں بہت محنت کرتے ہیں, اور ابھی تک تمام فنڈز سندھ حکومت مہیا کر رہی ہے اس کے لیے. اچھا, سندھ حکومت نے, میں نے پہلی بار سنا کہ کوئی اتنا اچھا کوئی کام کیا ہے, تو سندھ حکومت کے لیے تعریف. پورے کا پورا پروجیکٹ, کیونکہ اچھا کام کوئی بھی کرے, چاہے وہ میں کہتی ہوں بارش کا پہلا قطرہ ہی ہو, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل, ابھی تک پورے کا پورا پروجیکٹ سندھ حکومت اس کو فائنینس کر رہی ہے. لیکن لانگ رن میں کیونکہ اتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں, اب ہمارے پاس مریض نہ صرف سندھ سے آ رہے ہیں بلکہ پنجاب, بلوچستان اور KPK کے مریض بھی آ رہے ہیں. اب سندھ کا بجٹ ان لوگوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے, تو یہ لمبے عرصے کے لیے اس کو سسٹین رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ کہ یا تو یہ دوسرے جو پروونس سے پیشنٹ آتے ہیں وہ اپنا بجٹ جو اس ٹرانسپلانٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے اپنی حکومت سے لے کے آئیں, یا پھر ہمیں انفارچونیٹلی ایسا کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ چارجز ہر مریض کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے رکھنے پڑیں گے, تاکہ ہم اس کو سسٹینیبل کر سکیں. اس کی قیمت 50-60 لاکھ سے 30 لاکھ کر سکیں یا 25 لاکھ کر سکیں, یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. جی بہت شکریہ. اچھا میں آؤں گی عباس بھائی آپ کی طرف, کہ جگر کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے, اور خاص طور پہ جو بہت عام ہے ہیپاٹائٹس A, B and C, وہ جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں
लोग कहते हैं कि पीलिया जिसे कहते पीलिया जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस ए या बी की कैटेगरी में वो आता है? सी नहीं, सी की नहीं है वो, एक ही कैटेगरी में, ए की कैटेगरी में आता है, जिसमें आंखें पीली हो पीलिया का जाती हैं। मतलब है जॉन्डिस विगड़ के होना। जॉन्डिस हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, इनमें से किसी से भी हो सकता है। किसी से भी हो सकता है। किसी से भी, मतलब आंखों का पीला होना जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जॉन्डिस कहते हैं, उसको ही पीलिया कहते हैं। इन तमाम वायरस में कोई भी वायरस कर सकता है। जी, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है सबसे पहले हमारे तो तिब्बे मैं नबी appreciate के नुस्खों की करूंगा, रोशनी में? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे दोस्त डॉक्टर साहब, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सिंध हुकूमत जो है उसका बड़ा कारनामा है ये कि हज़ारों लोगों की जानें बच रही हैं। अच्छा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, एक नौजवान आया, उसने कहा कि मौला मुझे जॉन्डिस हो गया, यानी कि पीलिया हो गया। तो उसकी आंखें भी पीली थी, उसके नाखून भी पीले, तो तमाम जिस्म पीला होना शुरू हो गया और उसको चीज़ें भी पीली पीली नज़र आना शुरू हो गई। तो उसने मौला से शिकायत की कि मौला मुझे सख्त पीलिया है। तो मौला ने उससे फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि खीरा, जिसे क्यूकम्बर भी कहते हैं, खीरे के छिलके ले लो 420 ग्राम, यानी कि एक मुट्ठी के बराबर खीरे के छिलके ले लो और उसको 1 गिलास पानी में उबालो और 3 दिन तक सुबह निहार मुँह सिर्फ वो आप उसका पानी पिएं। उससे उसका जिगर का मसला, उसकी जिगर की बीमारी, उसके पीलिए की बीमारी उससे दूर हुई। अच्छा, आज जब तहकीक हुई, हमारे तिब्बे नबवी पर जो तहकीक होती है ज़्यादातर ईरान में हो रही है तहकीक, इस पर बहुत काम हो रहा है, वहाँ पर इस नुस्खे पर रिसर्च हुई बाकायदा, तो मालूम चला कि हज़ारों मरीज़ इसी से ठीक किए। वहाँ पर हर्बल ट्रीटमेंट ज़्यादा है ईरान के अंदर, हज़ारों मरीज़ इसी से, क्यूकम्बर के छिलकों से ही उबाल के 3 दिन पिलाए वो पीलिया चला जाता है। मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। आप पीलिया के लिए, जॉइंटिस के लिए करके देखिए, आप लोग हैरान हो जाएंगे, इसके ऐसे फ़वाइद सामने आते हैं। गन्ने का जूस भी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गन्ने का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है जॉन्डिस में। प्लस ये कि जो हमें डाइट लेनी चाहिए, इस वक्त हमें डाइट का ख़ास एहतियात करना चाहिए, क्योंकि डाइट की ख़राबी से ही हम जॉन्डिस की तरफ मूव होते हैं। तो उसमें हमें बहुत फ्लूइड डाइट लेनी चाहिए। प्लस तेल, घी और नमक मसाले वाले इस खाने इस वक्त तक छोड़ देने चाहिए। तकरीबन 3 से 4 महीने का परहेज़ होता है जॉन्डिस में, इससे कम परहेज़ नहीं होता। कि जब तक आप परफेक्ट हेल्थ की तरफ ना मूव हो जाए, तब तक आपने अपना परहेज़ नहीं छोड़ना होता है। और बहुत टफ टाइम होता है ये पेशेंट के लिए। और लौकी का सूप, ये वाली चीज़ें, और सब्जियों का सूप हो गया, यखनी हो गई है, ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा होती है जॉन्डिस के पेशेंट के लिए। चावल हो गया, सॉलिड डाइट्स लेना थोड़ा बेहतर होती है, क्योंकि यखनी बेहतर मना करते हैं कि गरम चीज़ मत नहीं, यखनी बेहतर होती है। उसमें हम जो स्पाइसेस, जो गरम मसाले होते हैं, उसमें जैसे हमने सिनेमन डाल के देते हैं, इस तरह के 2-3 गरम मसाले हम डाल के यखनी का सूप देते हैं। सिर्फ चिकन हमने उस वक्त नहीं देनी होती है। चिकन उस लेवल पे जाके दी जाती है जब पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है, जब वो डाइजेस्ट प्रॉपर करना शुरू कर दे खाने को। शुरू में आप जब जैसे पेशेंट इनिशियल स्टेज पर है, तो आप उस वक्त उसको नहीं दे सकते। और यखनी के अलावा जो सूप्स होते हैं, जो जूसेस हो गए हैं, लेकिन सब कुछ माइल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में दिया जा रहा होता है। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं लेमनेड का 1 गिलास पी सकती हूँ, तो वो जो पेशेंट को दे रहे हैं, वो पेशेंट को पानी ज़्यादा देंगे हम, उसमें जो भी हम एडिशन कर रहे हैं लीमू का, वो सारी चीज़ें कम बेस पर होंगी। नमक से मुकम्मल परहेज़ होता है, घी तेल से मुकम्मल परहेज़ होता है, सब्जियों और फल की तरफ मूव होना होता है। आपने सब्जियों की बात की, आपने फल की बात की, आपने नमक की बात की, आपने घी की बात की। अब ये सारी चीज़ें जो ये बता रही हैं, उनको सुनने के बाद आपको पता है कि आज का तड़का जो है वो जहन में आ जाता है। तो अभी इस वक्त हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का तड़का में गुलजार साहब के साथ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं जाएंगे, आप बात कर रही थी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं बता दूं तमाम देखने वालों को कि हम अपना क्विज़ जो है उसका आगाज़ करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और कौन जीते और कौन नहीं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस